Good morning, my dear students of class 9th. Today we will continue our exercise 1.3 of chapter 1. Students, before moving to question number 6, I would like to tell you one more difference between rational and irrational number. The rational numbers are the numbers whose decimal expansion can be expressed either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे लाइक 3.45 और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग भी होंगे लाइक 7.878787. सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. Next, for the irrational number, the decimal expansion of irrational numbers are always non-terminating, non-repeating. मतलब कि ना ही तो वो टर्मिनेट करेंगे और ना ही वो रिपीट करेंगे. So these are the irrational number. One more thing that you need to know about the rational number is that those rational number which have terminating decimal expansion has always their denominator as the power of 2 only, 5 only or both. मतलब जिन रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं तो उनके जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो उनकी पावर 2 में होती है या उनकी डिनोमिनेटर की पावर 5 में होती है, 2 और 5 दोनों में होती है. इसमें आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि अगर आपको बहुत सारे रैशनल नंबर दे दिए जाएं और पूछें कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, उसके डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे. अगर उसका डिनोमिनेटर या सिर्फ पावर ऑफ 2 में आए या पावर ऑफ 5 में आए या 2 और 5 दोनों में आए तो ही वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है. नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. Look at the several examples of rational numbers in the form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? So in this question we have given all the properties of rational numbers, that it is in the form of P upon Q and the P and Q both are integers and they have no common factor other than 1 and Q is not equal to 0 of course. But we have two types of rational number. The first one, as I have told you, is the terminating decimal expansion and the second one is the non-terminating repeating decimal expansion. So the one which have the terminating decimal representation, which other property can you say that Q must satisfy? So as I have told you, for the terminating decimal expansion the denominator must be of power 2 or 5 or 2 or 5 both. As I have written here, terminating decimal expansion will occur when the denominator Q of rational number P upon Q is either of 2, 4, 8, 10. Why I have written 2, 4, 5, 8, 10? Because 2 is itself a 2, 4 is 2 to the power 2, 5 is itself a 5, 8 can be written as 2 to the power 3, 10 can be written as 2 into 5 and so on. That means the denominator must have the power of 2 only or 5 only or both. Beside writing this one, you can also write that it can be observed that terminating decimal numbers may be obtained in the situation where prime factorization of denominator of the given fractions has the power of 2 only or 5 only or both. ओके, सो उन्हीं के ही आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे जिनके डिनोमिनेटर में या तो पावर ऑफ 2 होगी या पावर ऑफ 5 होगी या 2 और 5 दोनों होंगे. Now here we have question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. तो बेटा यहाँ आपको ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जो कि ना ही तो टर्मिनेट करें और ना ही रीअकर हो. तो इस क्वेश्चन के जो आंसर मैं लिख रही हूँ ज़रूरी नहीं कि आप यूनिकली यही आंसर लिखें, आप कोई से भी 3 ऐसे नंबर्स लिख सकते हैं जो ना ही टर्मिनेट हो ना ही रीअकर हो रहे हो. So here I have written 3 numbers like 7.345694 ... As you know, these dots are representing the endless terms and here you can see that none of the digit is reoccurring itself. Therefore, these numbers are non-terminating, non-reoccurring. Now question number 8 is find 3 different irrational numbers between the rational number 5 upon 7 and 9 upon 11. तो आपको इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं. सो
as you know that 5/7 in its decimal expansion can be written as 0.714285 over bar and 9/11 in its decimal expansion can be written as 0.81 over bar. और बेटा आपको ये भी पता है अब कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ना ही तो टर्मिनेट करें और ना ही वो रिपीट हो रहे हों. तो आपको सिंपली इन दो नंबर्स के बीच के ऐसे नंबर लिखने हैं, कोई भी एनी, जो कि ना ही टर्मिनेट करें और ना ही रिपीट करें. तो यहाँ मैंने आपके लिए 3 नंबर्स लिखे हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेंगे और ऐसे नंबर हैं ये जो कि ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर कभी भी यूनिक नहीं होते, आप कोई से भी 3 इनके बीच के नंबर लिख सकते हैं, बस वो इस कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हों ऐसे नंबर्स आप लिखें. Now next we have question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. Students, as I have told you that rational numbers are the numbers which are either terminating or non-terminating repeating. या तो वो टर्मिनेट हो जाए कम्प्लीटली या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो वो रिपीट होने चाहिए. और इरेशनल नंबर्स तो वो हैं जो कि ना ही वो टर्मिनेट होंगे और ना ही वो रिपीट करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें √23. बेटा जब आप √23 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा एक ऐसा नंबर जो कि ना ही तो टर्मिनेट हो रहा होगा और ना ही वो रिपीट हो रहा होगा. तो सिंपली एज आई हैव टोल्ड यू दैट जो नंबर ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो रहा हो वो इरेशनल होता है. नाउ सेकेंड पार्ट इज √225. √225 इज इक्वल टू 15 एंड 15 एज यू नो इज़ अ रैशनल नंबर. थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट अपने आप में टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये एक एंड पे आने पे ख़त्म हो रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर. फोर्थ में भी आप लोग देखेंगे तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देयरफॉर इट इज़ अगेन अ रैशनल नंबर. फिफ्थ पार्ट अगर आप देखें तो ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है. डिजिट्स तो सेम है बट वो रिपीट नहीं कर रही है, एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, दैट्स वाई इट इज़ एन इरेशनल नंबर. सो एज एन होल आई कैन से दैट पार्ट फर्स्ट एंड फिफ्थ आर द irrational numbers and second, third and fourth part are rational one. Students, we have completed our exercise 1.3. Now we are moving to our exercise 1.4, question number 1. Visualize 3.725 on the number line using successive magnification. So here we have to represent 3.725 on the number line, but this time we have to use a successive magnification. मैग्नीफिकेशन कैसे कहते हैं, किसी चीज़ को बड़े कर देना, जो मतलब ऐसे आपने पढ़ा मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वो ग्लास क्या करता है, जो भी आप जिस चीज़ को आप लेटर्स को देखते हैं तो वो अपने आप से क्या हो जाता है, मैग्नीफाइड हो जाते हैं या बोल सकते हैं उनका साइज एनलार्ज हो जाता है. तो यहाँ पे भी हमें सिमिलरली 3.725 को एनलार्ज करते करते वहाँ तक पहुँचना, सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक. नाउ फर्स्ट वी हैव 3.725. तो इसे हम 3 स्टेप में करेंगे. 3 स्टेप में क्यों, बिकॉज डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ 3 स्टेप्स हम लिख के लगेंगे. अगर 2 डिजिट्स होती तो हम 2 स्टेप्स में करते. तो स्टेप 1 जो है हम लोग का फर्स्ट वो क्या है, स्टेप फर्स्ट में हम लोग 3.725 को 2 नंबर्स के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे. लाइक 3.725 3 and 4 के बीच में लाई करेगा. Isn't 3.725 will lie between 3 and 4. Students remember you have to draw the number line using ruler only. तो ये 3 हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है और 4 हम लोग का एंड पॉइंट है. 3 and 4 के मिडिल में आता है 3.5. नाउ 3 के आगे आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड आफ्टर दैट 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. नाउ हम लोग स्टेप 2 की तरफ देखेंगे. अब स्टेप 2 में हम लोग को 3.725 देखना है. 3.7, तो 3.725 जो कि 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा. तो अब स्टेप 2 में फिर से हम लोग को नंबर लाइन बनानी है, बट इसका इनिशियल पॉइंट जो हम लेंगे वो लेंगे हम 3.7. ओके, एंड जो एंड पॉइंट लेंगे वो हम लेंगे 3.8. इन दोनों के जो मिडिल में आएगा वो आएगा 3.75. इज इट 70, अगर ये 3.7 है यानी कि 3.70 और 3.8 मतलब 3.80, दैट्स वाई मिडिल में क्या आएगा 3.75. नाउ आफ्टर दैट वी विल हैव 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, after that 3.76,
3.77, 3.78, 3.79. नाउ स्टूडेंट्स आपको अब मूव करना है स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में फिर से हम देखेंगे हम कहाँ नियरेस्ट पहुंचे, 7 to 5। नाउ 7 to 5 जो होगा वो इन दोनों के मिडिल में आएगा, 3.72 एंड 3.73 के बीच में। तो अगेन हम लोग फिर से एक नंबर लाइन क्रिएट करेंगे। इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, 3.72, बिकॉज 3.725 विल लाई बिटवीन 3.72 एंड 3.73, और एंड पॉइंट होगा हम लोग का 3.73। आपको पता है इसके मिडिल में क्या होगा, 3.725, बिकॉज ये 3.720 है और ये 3.730। ना आगे होगा 3.721, 3.722, 3.723, 3.724, 3.726, 3.727, 3.728 एंड 3.729। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, बट आप जब नंबर लाइन में स्पेशली इनके बीच में जब डिस्टेंस इक्वल रखेंगे तो आप इजीली लिख पाएंगे। अब हमें रिप्रेजेंट करना था 3.725 एंड वी गॉट दैट, हमें वो यहाँ मिल गया इनके मिडिल में, तो जहाँ वो हमें मिल गया उसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सर्कल। सो इन दिस वे यू हैव विजुअलाइज्ड 3.725 यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, मैग्निफिकेशन मतलब आपने उसको मैग्नीफाई किया, आपने इस रेंज को मैग्नीफाई किया है स्टेप 2 में, एंड देन फिर इस रेंज को आपने और मैग्नीफाई किया है स्टेप 3 में। सो इन दिस वे यू कैन डू सच क्वेश्चंस। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल इसी की तरीके का है, आपको वो अपने होमवर्क में करना है, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।